Hello everyone, welcome to Nirja Education. Today we are going to start the second chapter of civics, that is federalism. Now what is federalism? First of all, we understand the term federalism. Federalism is a system of a government in which power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. That means power is divided between the central and some power is given to the state government. That is called federalism. When power is divided between the central and the state, that is called federalism. In federalism, there is a two level of a government. One is for the entire country, that is central government. It is usually responsible for the few subjects of a common national interest. And second is a government at the level of a state that is responsible for day-to-day administering of their state. Means there are the two level of a government and each level of a government have their own powers. They enjoy their powers independence of the others. Means फेडरलिज्म में टू टाइप्स के गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल एंड दूसरा है स्टेट, और दोनों के पास अपने अपने पावर्स है, वो एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है. दे एंजॉय देयर पावर्स and they are not answerable to each others. That is called federalism. What is a unitary system? What is the difference between the unitary system and the federal system? First is unitary system. There is only one level of a government. In unitary system, there is only one level of a government, that is a central government. And in federal system, there are two or more level of a governments. मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड इज अ लोकल लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट. मीन्स एक से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट है तो उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम. ओनली वन लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट है, दैट इज अ सेंट्रल, उसे हम कहेंगे यूनिटरी सिस्टम. सो इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इन द फेडरल सिस्टम देयर आर टू or more levels of a government, that is central, state and third is local level government. Now in a unitary system, the central government can pass order to the state or a local level government. मतलब यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट इज़ वेरी पावरफुल. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है. दे कैन पास एन ऑर्डर, वो ऑर्डर कर सकते हैं टू द स्टेट एंड अ लोकल लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट. But in the federal system, the central government cannot pass any order to the state government to do something. मतलब इन फेडरल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती बिकॉज स्टेट्स को ऑलरेडी उनके पावर्स दिए गए हैं. सो इन अ फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर टू डू समथिंग टू द स्टेट एंड द लोकल लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट. The third difference in unitary system and the federal system is that in unitary system सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ पावर्स दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज़ नैरोड एंड ब्रॉडन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. मतलब वो जो पावर्स जो उसको देंगे वो कितने पावरफुल हो गए, कितना राइट्स है उनको, दैट इज़ डिसाइडेड बाय ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अगर कुछ पावर्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट, इन दैट ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वो पावर ले सकते हैं या कभी भी दे सकते हैं, और उसको नैरो और ब्रॉडन भी किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. उसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, मतलब स्टेट्स कुछ नहीं कर सकते. बट इन अ फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी हैव सम पावर. स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ पावर्स है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि वो पावर्स जो स्टेट के पास है वो वापस ले लेंगे. No, in federal system there is a specific power is given to the state government. So state is also powerful in their respective works. Now we will talk about some of the key features of the federalism. Features means how we will understand that this system is called federalism. There are something that is called the feature, that from that we will come to know that it is a federalism or not. The first feature is there are two or more level of a government. If there is a more than two or more government, then you can say that it is a federalism system. मतलब एक से ज़्यादा या दो या तीन होते हैं लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म. सेकंड इज डिफरेंट टायर्स, मतलब लेवल्स of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. Means for an example, अगर आप एक गुजरात में रहते हो देन यू आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बट
यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट है गवर्न द सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। मीन्स अगर आप गुजरात में रह रहे हो दैट मीन्स इफ आप इंडिया में भी रह रहे हो, इंडिया के अंडर गुजरात है, सो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आते हो और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आते हो। बट देयर इज सम स्पेसिफिक मैटर्स, दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक मैटर्स है, जैसे कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हो गए जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सम ऑफ द टैक्सेशन आर दोज फॉर विच यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड द गुजरात देन यू कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिडिक्शन मीन्स दायरा, मतलब दोनों का अलग अलग जुरिडिक्शन बनाया गया है जो सेम सिटीजन को रूल किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब सेम ही सिटीजन दोनों के अंडर में आएंगे। Third is the existence and the authority of each tier of a government is constitutionally guaranteed. मतलब state government in federalism there is a more than 2 level of a government. Some power is given to the central government also. So ऐसा नहीं है कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है तो वो स्टेट को बोलेगी कि ना आपके पावर्स मैं सारे ले लेता हूँ। समटाइम अगर ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास से वो पावर्स ले लेते हैं, तो मतलब बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के पावर्स है, तो क्या गारंटी है कि वो पावर्स उनके पास ही रहेंगे और सेंट्रल के पास नहीं आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गारंटेडली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास कुछ पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, वो पावर्स उनके पास से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकते। Fourth one is the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level of a government. Such changes require the consent of both the level of a government. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल जो सारे फंडामेंटल प्रोविजंस लिखे गए हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दोनों डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन चेंज करने हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ राइट टू चेंज एनी फंडामेंटल प्रोविजन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इन दिस बोथ द लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट हैव देयर कंसेंट। नाउ द फिफ्थ वन इज कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन and the power of a different levels of a government. Now in case of a dispute or conflict between the central and the state government, court work as an empire, मतलब court empire की तरह काम करेगा। They have the power of interpret the constitution, constitution में क्या लिखा है क्या नहीं वो भी समझाने का कोर्ट के पास राइट है, and the power of a different levels of a government, दोनों लेवल्स किसके अंडर में आते हैं, अंडर द कोर्ट। मतलब कोर्ट है जो मेन जो इफ़ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट देन कोर्ट जो डिसाइड करेगा, कोर्ट जो बोलेगा वही दोनों लेवल को मानना पड़ेगा। सो हियर कोर्ट वर्क लाइक एन एम्पायर। नाउ द सेकंड इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड to ensure its financial autonomy. Now to run a government, state government, central government both need a money, दोनों को पैसे की ज़रूरत होगी। तो here sources of revenue मतलब जो रेवेन्यू जो पैसे जो हो गए, रेवेन्यू जो हो गए, वो जो टैक्सेशन हो गए, दोनों लेवल को अलग अलग ऑलरेडी किया गया है कि कौन से लेवल में कौन सा टैक्सेशन जाएगा, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दोनों को स्पेसिफाई कर दिया गया है। सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिफेंस है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। Now the seventh and the last feature of the federalism is the federal system has a dual objective. Now this system has a dual objective. दो objective है. First is to safeguard and promote the unity of the country. मतलब जो यूनिटी हमारी जो इंडिया है, इट इज़ अ सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा है हमारे इंडिया में, सो टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। एंड सेकंड इज़ टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। इन्होंने ऑलरेडी रीजनल डाइवर्सिटी मतलब जो रीजनल जो है, जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ है, उनको भी कुछ राइट दिए गए हैं, सो दे कैन लिव टुगेदर पीसफुली।